آپ کو پتا نہیں ہے کہ یہ شراب پینا، یہ بلی اسموکنگ کرنا، یہ بیڑی سگریٹ تمباکو گٹکا کھانا، یہ چیزیں حرام ہے، اس کا کاروبار بھی حرام ہے۔ آج کھلے عام باپ کے سامنے، چچا کے سامنے، سماج کے سامنے اور مولوی کے سامنے آج شراب ہو، بیڑی سگریٹ تمباکو ہو یا بے نمازی ہو، یہ سارے مسائل کھل کر کے آج ڈٹ کر کے سماج کا مقابلہ یہ لوگ کر رہے ہیں۔ آج رویداسا کی یہ جامع مسجد میں جس عنوان کے تحت کچھ آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے تعلق سے۔ میرے عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی نوع انسان کو پیدا کیا اور پیدا کر کے اس کو یوں ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اس کو راہ راست میں لانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر زمانے میں ایک نبی کو بھیجا۔ اس نبی کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو پہنچا دیا اور اس امت کو زندگی گزارنے کے لیے چلنے پھرنے، کھانے پینے، پیشاب پیخانہ، چھوٹی سے چھوٹی مسئلہ اور بڑا سے بڑا کوئی مسئلہ بھی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس امت کو پہنچا دیا۔ اس لیے آج ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم لوگ کس طرح سے زندگی گزاریں گے، کس طرح سے ہم معاشی مسائل میں، اقتصادی مسائل میں، سماجی مسائل میں زندگی ہمیں کس طرح سے گزارنا ہے، ہمیں دیکھنا ہے تو نبی کا طریقہ دیکھنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھنا ہے، اور نبی کی زندگی کو دیکھتے ہوئے ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو اسلام ہم تک پہنچایا ہے یہ بڑی آسانی کے ساتھ نہیں پہنچا ہے، اس کے لیے بڑی بڑی قربانی ہمارے اسلاف نے پیش کی۔ یہ خون کے اوپر سے، لاشوں کے اوپر سے آج ہو کر کے آج ہم تک یہ اسلام پہنچا ہے۔ یہ اسلام کے لیے جتنا ہمارے اسلاف نے جد و جہاد کی، جتنا قربانیاں پیش کی، کسی بھی مذہب اور فرقے کے اندر آج تک وہ مثال نہ پیش کر سکا ہے اور نہ کر سکے گا۔ اس لیے آج ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ نبیوں کا سلسلہ منقطع ہو گیا، اب اس کے بعد ذمہ داری آج ہم سب کی ہے کہ آج اگر سماج کے اندر برائی ہو رہی ہے تو اس سماج کے اندر برائی کو روک تھام کرنے کے لیے ہمیں قدم اٹھانے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اس کے سلسلے میں ایک سسٹم بنانے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ سسٹم نہیں بناتے ہیں تو پھر ایسی صورت میں آپ اس دنیا کے اندر ہلاک و برباد ہوں گے، اور مرنے کے بعد بھی سخت ترین عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یہ فرمایا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم سب سے بہترین امت ہو۔ کیوں؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو تاکہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم کرو اور برائی سے روکو۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، سب سے بہترین امت بنایا، اور یہ بہترین امت اس لیے ہمارے ساتھ لگایا، ہمارے ناموں کے ساتھ، کہ یہ امت آج ایک دوسرے کے لیے نکالا گیا ہے، آج ایک دوسرے کی خیر خواہی کرے گا، ایک دوسرے کی بھلائی کرے گا، ایک دوسرے کو بھلے کام کا حکم کرے گا، ایک دوسرے کو برائی سے روکنے کی کوشش کرے گا۔ اس کام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر آپ کو بھیجا ہے۔ ہمارے اسلاف اسی وجہ سے اس راہ کے اندر جو قربانی پیش کی وہ بیان کرنے کے قابل ہے۔
आज वक्त नहीं है मेरे भाइयों कि वो सारे मसाइल को आज खोल करके मैं आपके सामने रखूं। आज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जो इस्लाम की दावत लोगों के सामने पेश किया, आप देखते जाइए कि लोग जब इस्लाम के अंदर दाखिल होते गए, औरतें इस्लाम के अंदर दाखिल होते गए, और उन्होंने अपने जान माल की कुर्बानी है ही नहीं, बल्कि अपने आप को इस तरह से पेश किया, अपनी कुर्बानी की कि आज तक नहीं बल्कि क़यामत तक उसके कारनामे को लोग याद रखेंगे। हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का वाक़या हो या हजरत हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वाक़या हो, इस तरह के बेशुमार वाक़यात है मेरे भाइयों कि जो दावती मैदान में उतर करके इन लोगों ने अपनी कुर्बानी पेश की। आज वो जिम्मेदारी आज हम सबको मिली है, आज उलमा को जिम्मेदारी दी है, लेकिन यकीन जानिए आज कोई गांव या कोई मोहल्ला ऐसा नहीं है जिस गांव के अंदर एक आलिम ना हो, इल्ला माशाअल्लाह। हर गांव के अंदर 2-4 उलमा आपको मिल जाएंगे, 10 उलमा, 12 उलमा, 15 उलमा, 20 उलमा आपको मिल जाएंगे। लेकिन उलमा की सबसे बड़ी कमी यह है मेरे भाइयों कि ये लोग अपनी जिम्मेदारी को नहीं इसका एहसास इसको नहीं है, इसकी जिम्मेदारी का एहसास इसको बिल्कुल नहीं है। इल्ला मन रहिमा रब्बी, इल्ला के कुछ लोग ये चीज करते हैं। लेकिन अगर हर आलिम अपनी जिम्मेदारी को समझ ले और अपनी जिम्मेदारी का एहसास करते हुए गांव समाज के लोगों को बेदार करने की कोशिश करे, तो मेरे भाइयों गांव के अंदर वो इनकलाब बर्पा होगा जो हमारे असलाफ ने किया। हमारे असलाफ ने ये कुरान और सुन्नत के जरिए से, ये दावत के जरिए से वो तहजीब और तमद्दुन के वो मालिक बन गए, वो कैसर किसरा के मालिक बन गए। आज भी तुम बन सकते हो, लेकिन जलील और खार हो, तुम रुस्वा होते हो, तुम मार खाते हो, तुम्हारा एक ही वजह है कि तुमने दावत को छोड़ दिया, तुमने एक दूसरे को रोक टोक छोड़ दिया। हमारे असलाफ वो थे कि किसी की मजाल नहीं थी कि बाप के सामने बैठ करके कोई बीड़ी निकाले, बाप के सामने, चचा के सामने या बड़े गांव समाज के उम्र दराज आदमी के सामने वो बैठ करके कोई नाजायज हरकत करे, ऐसा किसी की मजाल नहीं होती थी। एक जमाना वो था कि अगर कोई आदमी अगर बीड़ी भी अगर पीना होता था, ऐसा नशाखोर और बदकार आदमी होता था, तो वो भी समाज से बिल्कुल कोने में जाकर के, जंगल में जाकर के, वो दीवार के आड़ में जाकर के कभी बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू इस तरह के नाजायज काम और ये चीजें खा लेते थे, पी लेते थे, लेकिन समाज के सामने ये काम नहीं करता था। आज बेहयाई का वो जमाना है मेरे भाइयों कि आज खुले आम बाप के सामने, चचा के सामने, समाज के सामने और मौलवी के सामने आज शराब हो, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू हो या बेनमाजी हो, ये सारे मसाइल खुल करके आज डट करके समाज का मुकाबला ये लोग कर रहे हैं। ये उम्मत जो हमारे जिनकी इतनी खैर उम्मत बतलाया, अशरफुल मखलूकात उनको बनाया, लेकिन यकीन जानिए ये उम्मत अगर कोई मौलवी अगर बता दे कि तुम बीड़ी सिगरेट क्यों पीते हो, तुम ये शराब क्यों पीते हो, तुम बेनमाजी क्यों हो, तो देखिए आज मौलवी के खिलाफ हो या तो मंडल सरदार के खिलाफ हो, मिंबर के खिलाफ हो, आज सारे लोग मिल करके मौलवी को उस मस्जिद से निकालने की कोशिश किया जाता है। और सारे समाज के अंदर उस मौलवी का या जो भी आदमी नमाज रोजे की बात करे, हक बात करे, उस आदमी को दबाने की कोशिश किया जाता है। अल्लाह उसी का भारी है, लेकिन आज साथ कुरान और सुन्नत का साथ देने वाला नहीं है मेरे भाइयों। एक जमाना वो था कि कोई भी आदमी अगर नाजायज काम समाज के सामने अगर करता था तो उसको मारा जाता था, उसको डांटा जाता था और वो डर के मारे उस बुराई को छोड़ देते थे। एक जमाना वो था। आज वो जमाना आया मेरे भाइयों कि आज अगर किसी को आप बोलेंगे ए तुम बीड़ी क्यों पीते हो, हाँ ये तुम शराब क्यों पीते हो, तुम ऐसा क्यों करते हो, तुम गाली क्यों देते हो, तुम जिनाकार क्यों हो, अगर ये बात किसी ने अगर बोल दिया तो उसकी खैरियत नहीं,
अगर एक थप्पड़ लगा दिया या मारा भी नहीं, अगर डांट भी दिया, जाकर के घर में क्या बोलते हैं, अब्बा मेरे को फला आदमी ने, वो फारूक साहब ने हमको गाली दिया, वो मौलवी साहब ने हमको गाली दिया, वो मौलवी साहब ने हमको मारा, या मंडल साहब ने हमको मारा। अच्छा, कौन मारा रे? चलो, जा करके बाकायदा मुकाबला के लिए तैयार हो जाता है। बोलता है कि मेरा बेटा तंबाकू खाया, मेरा बेटा बीड़ी सिगरेट खाया, आपका क्या हुआ? या हमारे पैसे से खाया, आपके पैसे से तो नहीं खाया। ये आज का समाज है मेरे भाइयों। और इस तरह से बेबाक या वालिदैन अपने बेटे के नाजायज कामों में वो किस तरह से बढ़ावा देते हैं मेरे भाइयों। और वो बच्चा क्या बढ़ेगा नहीं, वो बच्चा समाज के अंदर खुल करके बुराई करेगा। तो आज समाज के अंदर बुराई है, बेहिसाब बुराई है। 75% आज हमारे समाज के अंदर शराब पीते हैं। आप कुरान और सुन्नत के मानने वाले हैं, लेकिन यकीन जानिए ये वो मुसलमान है जिससे देख के शर्माई हो। आज किसका बेटा शराब भट्टी में जाकर के देखिए, आज शराब भट्टी में आपको 50 से ऊपर प्रसिद्ध आपको मिलने वाला है हमारे ये मुसलमान जो शराब पीता है, बेनमाजी है। 90% आज बेनमाजी है हमारे ये मुसलमान है। आखिर क्यों? क्या आपको पता नहीं है कि ये शराब पीना, ये बीड़ी स्मोकिंग करना, ये बीड़ी सिगरेट तंबाकू गुटखा खाना, ये चीजें हराम है, इसका कारोबार भी हराम है। आप किस मुंह से समाज के अंदर इस तरह की हरकत करते हैं? मेरे भाइयों, आज आपका बेटा शराब पीता है, आपको मालूम है, आप कुछ नहीं बोलते हैं। आपका बेटा, अगर आपके बेटे को कोई मार दे, कोई गाली दे दे, तो आप तो फिर देखिए जमीन का मामला आ जाए, आस्तीन उठा करके लड़ने के लिए तैयार है। गरीबन भगदम अपने आप को बहादुर की शक्ल में पेश करके लोगों से लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन इस मामले पे भोले बन जाते हैं। अरे मेरे बेटे को बोलता हूं, ये सुनता नहीं है। कैसे आप आदमी हैं मेरे भाइयों? ऐसा आदमी जन्नत के अंदर नहीं जाएगा जो अपने समाज के अंदर, जो अपने घरों के अंदर बुराई देखता हो और देख करके खामोश रहता हो, पंचायत ना करे, उसको ना बोले। ऐसा आदमी दय्यूस है। और दय्यूस का तर्जुमा अगर करूं तो एक मर्तबा एक मौलवी साहब ने बोला 3 किस्म का आदमी जन्नत नहीं जाएगा। अब जब दय्यूस को बोला कि एक उसमें से कौन है दय्यूस, तो दय्यूस का जब तर्जुमा किया तो कई आदमी गांव मोहल्ले के अंदर, वो मौलवी साहब ने दय्यूस क्यों बोला, तो बोला कि आपको बोला थोड़ी है, ये तो तकरीर में बोल दिए। नहीं, मेरे को ही बोले हैं। दय्यूस का माना हिजड़ा है, दय्यूस का माना नामर्द है, दय्यूस का माना वो आदमी जो बुराई देख करके खामोश बैठ जाए, मना करने की ताकत हो, उसके बावजूद वो मना ना करे, वो आदमी समाज की शरीयत, इस्लामी शरीयत के अंदर वो आदमी दय्यूस है। और दय्यूस जन्नत के अंदर दाखिल नहीं हो सकता है। इसलिए मेरे भाइयों, कहने का मतलब यह है कि आपके घर में आज आपका बेटा शराब पीता है, आपको उसको मना करने की हिम्मत क्यों नहीं है? बताओ, क्यों नहीं हिम्मत है? पंचायत करो, बुलाओ मौलवी साहब को, बुलाओ मंडल सरदार को, बुलाओ मिंबर को, पंचायत करो। अगर इसका पंचायत नहीं है तो दुनिया में किसी भी चीज का पंचायत नहीं है मेरे भाइयों। लेकिन बड़े आप भोले हैं, इस मामले को घरों के अंदर बड़े ढांप करके आप रखने की कोशिश करते हैं, आप दूसरे मामले में आप बहादुर बन जाते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, कहने का मतलब यह